Hi guys and welcome back to our channel. So as many students were asking me about the strategies to crack MNS 2022, and they were also asking that this year we are not able to crack the MNS 2021. So when should we start preparing for MNS 2022? So here is the video for them. So in this video we will discuss two things. First one is when should we start preparing for MNS 2022, and second thing is strategies to crack MNS 2022. Before moving ahead, you must know that when the MNS 2022 exams can be conducted. So if the condition of the corona or lockdown will be normal, then your exam is going to be conducted in March or April. Okay, because usually MNS exam is conducted in the month of April, but because of this lockdown and due to corona pandemic, last year it was conducted in September month, and this year it has been conducted in July month. So most probably for MNS 2022 it will be conducted in March or April month. So if you count, then you won't have much time, okay, as the results and the merit will be out in September, October. The 2021 will be over finally, and in November or December your forms will be released. So you have to prepare from now only. So let us discuss that when you should prepare. So students who believe that they won't be able to clear MNS 2021 should start preparing for 2022 from now only. Okay, you have to prepare from now only, because you know that GK is a very vast subject. In English, you need to practice more and more about grammar and vocabulary, and in science portion, you have to take care of physics and chemistry, because this year students find physics, chemistry the toughest. So you have to start preparing from now only to enhance your chances of selection. Okay, so let us discuss that how you should prepare for MNS 2022. So first thing is that you have given exam of MNS 2021. So you know very well that where is your weakness. You should find your weakness. Like many students who have given review to me, they told me that they have faced problems in physics, chemistry, and in few questions of GK and in vocabulary portion of English. So that is the common weakness of all the students. You have to find your one, and you have to secondly work upon the thing you find difficult. Okay, जो चीज़ आपको easy लगती है वो तो आप अच्छे से कर ही लोगे, but the thing which you are finding difficult, you have to focus upon that also. You can't leave that behind, because आपकी strength, आपकी जो weakness है उसको भी आपको अपनी strength बनाना है. Then only you will be able to clear this high cut-off competitive exam. Next thing is that daily vocab portion. You have to focus upon your vocabulary part, because in English the jumble words or your grammar in fill-ups were easy. You can अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं, so you can just mark the answers by counting. तुक्के लगा के आप कर भी सकते हो. वैसे तो इतनी easy थी कि सबको आते ही होंगे, but vocabulary में आप तुक्के नहीं लगा सकते. अगर आपको मीनिंग पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे. So आपको vocabulary portion जो है वो डेली करना है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही करो. नेक्स्ट थिंग इज चूज राइट बुक्स. ये सबसे, मैं अपने पॉइंट ऑफ ओपिनियन से बोलूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, कि आपको राइट स्टडी मटेरियल जो है वो चूज़ करना है. अगर आपको स्टडी मटेरियल ही आप सही नहीं चूज़ कर पा रहे हो, देन आपको कैसे पता चलेगा कि उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या प्रिपेयर करना है. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू हैव टू चूज़ द राइट बुक्स एंड राइट स्टडी मटीरियल्स, एंड यू हैव टू नो दैट वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड एंड हाउ यू हैव टू कंप्लीट दैट इंडिविजुअल बुक. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक सब्जेक्ट की 3-4 बुक एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक लो एंड उसी को बार बार पढ़ो. ओके, दैट इज़ मच बेटर. सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो लेनी है. ऑल्दो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी हैं बुक्स की, बट उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स बताई हैं कि अगर आपके पास ये है तो ये ले लो, ये नहीं तो ये ऑप्शन ले लो. बट जो मैं इस साल जो वीडियो बनाऊंगी बुक्स की 2022 के लिए, वो ऐसी बुक्स होंगी जिनको मतलब एक एक बुक होगी, एक इंग्लिश के लिए, एक जीके के लिए और एक आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप MNS एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकते हो. आपको ज़्यादा बुक्स पे खर्चा ना करना पड़े, एंड अगर आप ज़्यादा बुक्स लोगे तो प्रेशर भी हो जाता है माइंड पे भी, इतनी सारी बुक्स मेरे को पढ़नी है. अगर आपके पास कन्फाइंड स्टडी मटेरियल होगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे.
नेक्स्ट थिंग इज रिवाइज द थिंग्स अगेन एंड अगेन. रिवीजन इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट. लाइक जीके में मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं, अगर आप उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, बट अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे 1 मंथ बाद आप उसको फिर उठाओगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये तो न्यू टॉपिक मैं कोई पढ़ रही हूँ. आपको रिवीजन जो है वो करते रहना है. अगर आप उसको 2-3 दिन में रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो वीकली रिवीजन ज़रूर रखो. संडे को आप और कुछ मत करो, जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करो. रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट इज, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपरली. लाइक अभी हमने यूट्यूब पे मैंने 2021 का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड कर दिया है. 2020 का आपको एमएनएस प्रेप के चैनल पे मिल जाएगा. 2019 का भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है. तो आपको 2019, 20, 21 तीनों के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं एंड किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो हर बार आ रहे हैं एंड कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर रहे हैं. आपको एमएनएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक नीट का या बाकी एग्जाम्स का गूगल पे बहुत इजीली मिल जाता है, बट एमएनएस का नहीं मिल पाता. और एमएनएस का वेल डिफाइंड सिलेबस भी जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा. सो आपके पास इकलौता जो रास्ता बचता है वो यही है कि आप एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालाइज करो एंड देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हर साल आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं एंड किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है. सो एनालाइज करने हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मार्क द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रिपेयर देम फर्स्ट. जो आपको टॉपिक्स लग रहे हैं कि हर साल रिपीट हो रहे हैं एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एमएनएस हमेशा पूछ रहा है, चाहे वो शिफ्ट 1 में, चाहे वो शिफ्ट 2 में, चाहे वो शिफ्ट 3 में, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो. पहले एक लिस्ट बना लो. सबसे पहला किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहला मेन मुद्दा जो आपका होना चाहिए कि आपको प्रॉपर सिलेबस और पैटर्न पता होना चाहिए एग्जाम का. तो आपको पहले क्वेश्चन पेपर देख के आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है. सेकेंड थिंग जो आपको करनी है कि सिलेबस जो है आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है एंड जहाँ भी आप पढ़ते हो वॉल पे अपना सिलेबस जो है पक्का चिपका लो ताकि आपको बार बार सिलेबस के लिए इधर उधर ढूंढना ना पड़े. अगर आपके पास आपको आपकी मंजिल पता है तो आपको रास्ता बनता हुआ आपको ईजिली दिख जाएगा. ठीक है, अगर आपको पता है कि मुझे एमएनएस क्लियर करना है तो आपको सिलेबस ही आपका वो रास्ता है. आपको 1 by 1 जो है स्टेप चढ़ने होंगे एक एक टॉपिक के. तो सिलेबस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अच्छे से पता लगाना है. नेक्स्ट थिंग इज़ एनालाइज द पेपर पैटर्न प्रॉपरली. आपको पेपर का पैटर्न भी प्रॉपरली पता होना चाहिए कि पेपर में कितने मार्क्स का क्या आ रहा है एंड मुझे कैसे किसको प्रिपेयर करना है. अगर आपके इंग्लिश की बात करूं तो स्पॉट दी एरर्स इस साल नहीं आए, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं. तो आपको यानी कि स्पॉट दी एरर्स को कम टाइम देना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स पे ज़्यादा फोकस करना है. तो ऐसे एग्जाम का पैटर्न आपको अच्छे से एनालाइज करना है. सेकेंड थिंग इज़ प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट. कि अगर आपने एक बार एग्जाम का सिलेबस पता लगा लिया, पैटर्न पता लगा लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगा लिए, देन उसी के हिसाब से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो. नेक्स्ट अगर इंग्लिश की बात करूं, अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज. इस वीडियो में ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी सिलेबस में, मैं ऊपर से आपको बता रही हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है. बाकी नेक्स्ट वीडियोस जो मैं लेके आऊँगी उसमें आपको सिलेबस बताऊंगी, बुक्स बताऊंगी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, बट दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द स्टार्टिंग. सो फोकस मोर ऑन वोकैब पार्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया इस साल स्टूडेंट्स को जो है ग्रामर पार्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई. दिक्कत कहाँ आई उनको? वोकैब पार्ट में. वोकैब में क्या क्या आता है आपका? सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि 5 मार्क्स के आते हैं ये चारों चीज़ें. सो सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स में बेसिकली ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस एज़ पर माय व्यू ये थोड़े इजी होते हैं लर्न करने के लिए. और अगर इनका मतलब आपको नहीं भी पता तो थोड़े बहुत जो हैं तुक्के चल जाएंगे अगर वो सिंपल वाला होगा तो बेसिकली आपको सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स पे ज़्यादा फोकस करना है. सो इंग्लिश पे ओवरऑल देखा जाए तो आपको वोकैबलरी जो है वो डेली करनी है. ओके, वोकैबलरी आप चाहे 20 वर्ड्स करो बट आपको डेली करनी है. एंड ये मैंने थोड़े वोकैबलरी के टॉपिक्स बता दिए हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है. नेक्स्ट थिंग बात करते हैं जीके की. जीके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मिसलेनियस एक्सरसाइजेज ऑफ लूसेंट. लूसेंट बुक जो है अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं तो यूपीएससी स्टूडेंट्स भी लूसेंट बुक पढ़ते हैं, एसएससी एग्ज़ाम वाले भी लूसेंट बुक पढ़ते हैं, एमएनएस वाले भी पढ़ते हैं, एनडीए वाले भी पढ़ते हैं. तो सारे बच्चे अलग अलग वेरियस एग्ज़ाम्स के जो हैं स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स लूसेंट बुक पढ़ते हैं. बट हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस तो सेम नहीं है.
यूपीएससी में बहुत ज़्यादा डीप आएगा तो उसमें आपको लूसेंट का एक एक पन्ना पढ़ना पड़ेगा। एमएनएस में इतना डीप नहीं आता है, तो एमएनएस के हिसाब से आपको मिसलेनियस एक्सरसाइजेस जो कि है स्टैटिक जीके का पार्ट, वो आपको सबसे पहले कवर करना है लूसेंट में। इस साल अगर आप एग्जाम देखो तो करंट का क्वेश्चन सिर्फ 1-2 आया था, बाकी आपका जो बेसिकली स्टैटिक जीके पोर्शन बहुत था। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छे से अपना स्टैटिक जीके को प्रिपेयर करो, यानी कि सबसे पहले आपको करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइजेस ऑफ लूसेंट। सेकेंड थिंग इज़ ज्योग्राफी। इस साल के क्वेश्चन पेपर में ज्योग्राफी के भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। कैश क्रॉप से क्वेश्चन आया था, इंडिया की ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में क्वेश्चन आया था। सो आपको उसी के हिसाब से देखना, लाइक बॉर्डर लाइंस ऑफ इंडिया पे आया था क्वेश्चन, देन हिल्स ऑफ द माउंटेन हिल्स आया था। तो ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको ज्योग्राफी करनी है। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि ज्योग्राफी पे आपको लूसेंट की पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप है, वो यूपीएससी एस्पिरेंट के अकॉर्डिंग है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। तो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको ज्योग्राफी के लिए रेडी करने हैं, एंड इससे आपको हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कि कैसे क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हैं। नेक्स्ट इज डिफेंस अवेयरनेस। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई कैन से। ऑल्दो इस साल शिफ्ट 1 में सिर्फ डिफेंस अवेयरनेस से 1 क्वेश्चन आया था, शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन आए थे डिफेंस अवेयरनेस से रिलेटेड, बट इससे क्वेश्चन आता ज़रूर है। डिफेंस अवेयरनेस में आपको एयरफोर्स के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, उनके करंट आर्मी स्टाफ के बारे में, ये सारी आपको नॉलेज जो है वो होनी चाहिए कि कौन उसको सुपरवाइज करता है, क्या है। डिफेंस अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई कैन से। नेक्स्ट इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है एमएनएस में इतने डीप नहीं आते हैं। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स भी कर रहे हो दैट विल बी वेल एंड गुड। आपको जो है करंट अफेयर्स किसी भी यूट्यूब चैनल से करोगे तो दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, एंड टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। अगर तो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है दैट विल बी वेल एंड गुड, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे। बट आजकल के टेक्नोलॉजी इतनी है कि न्यूज़पेपर पे क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा। रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, सिर्फ वो लास्ट वाला एडिटर वाला पोर्शन जो है आपको पढ़ना है रीडिंग के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज़ यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं, आपका डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस अवेलेबल होते हैं। तो आप यूट्यूब से ही प्रिपेयर करो करंट अफेयर्स, दैट विल बी मच बेटर। एंड नोट्स जो है अपने प्रॉपरली बनाते जाओ, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अब भी नोट्स बनाओगे तो लास्ट टाइम पे आपको फिर से इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आपके पास सारे नोट्स होंगे तो उनको बार बार रिवाइज करोगे। और एक चीज़ होती है कि जब आप नोट्स बनाते हो तो एक तो दिमाग लगता है कि किस प्रॉपर वे में मैं नोट्स बनाऊं, तो आधी चीज़ें आपको वहीं पे दिमाग में सेट हो जाती हैं। उसके बाद लिखते टाइम भी आपको याद होता है, तो लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ रिवीजन पार्ट। तो नोट्स इज़ द बेस्ट थिंग। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है इस साल। एंड मैंने बाकी बच्चों को भी बताया था, जब आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में यूट्यूब पे मैंने इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स जो है एग्जाम से पहले अपलोड किए थे, एंड उसमें से सारे टॉपिक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया है। सो आपको अगर हम पे ट्रस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जो हम टॉपिक्स बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कांट मिस दैट। सो पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें साइंस की, तो साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बायोलॉजी। ठीक है, जीके में आपकी रीजनिंग भी आती है, रीजनिंग आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस करो, देन आप कोडिंग डिकोडिंग करो, ये मेन थिंग है। ओके, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, ये आपको सबसे पहले कवर करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में बायोलॉजी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी आपकी आती है 35 to 36 मार्क्स की आउट ऑफ 50। साइंस आपको पता है 50 मार्क्स के आते हैं, उसमें से 35-36 मार्क्स की तो बायोलॉजी ही आती है। एंड आपको बायोलॉजी के लिए क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी एकदम रटी होनी चाहिए, एक एक लाइन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन के आता है। एंड उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कितने कर सकते हो, क्वेश्चंस लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट थिंग इज़, इस साल बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई थी फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री में इस बार थे न्यूमेरिकल्स। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ ओपिनियन से बताऊं तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले लूसेंट पढ़ो, जितनी भी लूसेंट में फिज़िक्स केमिस्ट्री है उसको पढ़ो। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो,
कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, एंड जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसको मेन फोकस करके पढ़ो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक इतनी नॉलेज स्टार्ट करने के लिए बहुत है। एक बार आप स्टार्ट करो, एक एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद बाकी हमारी वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, बिकॉज यहाँ पे 2022 के लिए भी सारे नोट्स वगैरह जो है अपलोड होने जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे, एंड अगर 2021 के लिए हो तो उसके भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर ना मिले फिर भी आपको, तो आप MNS 2021 प्रिपरेशन ग्रुप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप हमको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज़ लाइक शेयर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है एक सिंगल वीडियो बनाने में, बिकॉज प्रेजेंटेशन हमें बनानी पड़ती है। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन। सो थैंक यू सो मच।